پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ حضرات اللہ رب العزت اپنے مقدس کلام میں ایمان والوں سے خطاب فرما رہا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ آج ہر کوئی اپنے آپ کو ایمان والے کا دعویٰ کر رہا ہے، ہر جانب کہہ رہا میں ایمان والا ہوں، ہر طرف یہ شور مچا ہوا ہے ہر ایمان والا ہے۔ آخر ایمان والا ہے کون؟ تو اللہ فرماتا ہے اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ایمان کے ساتھ ساتھ اللہ سے ڈرنا بھی ہے اور ڈرنے کے ساتھ ساتھ سچوں کے ساتھ رہنا بھی ضروری ہے۔ حضرات ایمان والا نماز پڑھنے سے چہرے پہ نور پیدا ہوتا ہے اور اچھوں کے ساتھ ہونے سے دل میں سرور پیدا ہوتا ہے۔ حضرات یہ ہے اچھوں کی جماعت۔ آج کسی شخص کو کسی گاؤں کا نمبردار اسے ایمان والا کہہ دے، کسی گاؤں کا نمبردار اسے ایمان والا کہتے تو کتنا خوش نظر آتا ہے کہ گاؤں کے نمبردار نے ایمان والا کہہ دیا۔ کسی شہر کا امیر کسی کو ایمان والا کہتے تو خوشی اور فرحت و شادمانی سے جھوم جاتا ہے۔ کوئی منتری یا وزیر کسی کو ایمان والا کہتے اس کے خوشی کا کوئی انتہا نہیں رہتی۔ اگر کسی ملک کا بادشاہ کسی کو برسر اسٹیج بلا کر کہتے تو ایمان والا ہے تو علاقے میں ڈنکا بجنے لگتا ہے، اس کی شہرت کا چرچا ہونے لگتا ہے۔ لیکن اے غوث اعظم کے دیوانوں، اپنے مقدر پہ ناز کرو۔ اے نبی کے کلمہ پڑھنے والوں، جس نبی کا کلمہ تم پڑھتے ہو آج کوئی تمہیں نمبردار نہیں، کوئی دنیا دار نہیں، ساری کائنات کا پروردگار اپنے محبوب کے امتی کو ایمان والا کہتے خطاب فرما رہا ہے۔ آج انہیں خطاب فرما رہا ہے، ایمان والا کہتے خطاب فرما رہا ہے۔ ساری کائنات کا پالنہار ہمیں ایمان والا کہتے خطاب فرما رہا ہے۔ وہ ساری کائنات کا پالنہار ہے جو نبی کے غلاموں کو ایمان والا کہتے پکار رہا ہے۔ ایمان والا ہے کون؟ آج ہر آدمی ایمان والے کا دعویٰ کر رہا ہے، ہر آدمی اپنے آپ کو سچا کہہ رہا ہے۔ چور ہو اپنے آپ کو سچا کہتا ہے، دغاباز ہو اپنے آپ کو سچا کہتا ہے، عیار و مکار ہو اپنے آپ کو سچا کہتا ہے، اور دنیا کی تمام برائی کرنے والا انسان اپنے آپ کو سچا کہتا ہے۔ لیکن آئیے چلتے ایک حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کروں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ سچے کون لوگ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس کے راوی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ کے بندوں میں بعض لوگ وہ لوگ ہوں گے جو انبیاء اور شہداء کو نہیں لیکن انبیاء اور شہداء ان کے مرتبے پہ رشک کیا کریں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آخر وہ انبیاء اور شہداء تو نہیں ہوں گے لیکن انبیاء اور شہداء ان کے مرتبے پہ رشک کریں گے، آخر وہ کون لوگ ہوں گے، آخر کون سی جماعت ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہی لوگ ہوں گے جو دنیا میں بغیر قرابت داری کے، دنیا میں بغیر تعلقات کے، دنیا میں لوگوں میں مقبول ہو گئے ہوں گے اور ان کا چہرہ چمکتا اور دمکتا ہوا نظر آئے گا، ان کا چہرہ روشن ہوتا ہوا نظر آئے گا اور ان کے چہرے پہ نہ کوئی خوف ہوگا، نہ کوئی ڈر ہوگا، نہ کوئی حزن و ملال ہوگا۔ آخر میں اللہ کے رسول آیت کریمہ تلاوت فرماتے ہیں اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اے غوث اعظم کے دیوانوں، یہی وہ سچوں کی جماعت ہے۔ آج وہ کسی سے ڈر نہیں رہے ہیں، آج ان کے چہرے پہ کوئی ملال نہیں ہے۔ آج یہی وجہ ہے کہ دریا میں مصلی بچھا کر نماز پڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، آگ میں اپنے کودتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ہواؤں اور فضاؤں میں اڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آج پوری دنیا ان کی بارگاہ میں چھوٹتی چلی جا رہی ہے، ان کے اوپر نہ کوئی خوف ہے، نہ کوئی ڈر ہے، نہ کوئی حزن و ملال ہے۔ اب ایک آپ اندازہ لگائیے، ہم بھی اللہ کے بندے ہیں، وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، آخر ان کے اندر کون سی مقناطیس ہے، آخر ان کے اندر کون سی کشش ہے؟ کسی کو 1000 سال کا زمانہ ہو گیا، کسی کا 800 سال کا زمانہ ہو گیا، کسی کا 200 سال کا زمانہ ہو گیا، کسی کا 100 سال کا زمانہ ہو گیا۔ جیسے ظاہری زندگی میں لوگوں کے درمیان لوگوں
को फैजान अपने फैजान से माला माल कर रहे थे, आज भी कब्र के अंदर लेट कर लोगों को माला माल करते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर उसकी कौन सी कशिश है? तो आपको ये कहना पड़ेगा। आपको मैं ये बता दूं, आखिर हमारे और आपके घर से अगर किसी का इंतकाल हो जाए, बच्चा और नेक और साले है तो साल में बरसी कर लिया करता है। अगर उसके पोते नेक और साले हैं तो पोते याद कर लिया करते हैं, उसके परपोते याद कर लेते हैं। 2 से 3 नस्लों के गुजर जाने के बाद कोई उस मरहूम को याद करने वाला नहीं रहता है, कोई उसे जानने वाला नहीं रहता है, कोई उसके नाम से इशारे सवाब करने वाला नहीं रहता है। लेकिन एक और से आजम आपको गए हुए 800 साल का जमाना हो गया। ऐसे सारे गरीब नवाज आपको गए हुए 900 साल का जमाना हो गया। महबूबे इलाही 700 साल का जमाना हो गया। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी आपको 800 साल का जमाना हो गया। आखिर कौन सी कशिश है? जैसे आप लोगों को पैसान से माला माल कर रहे थे, आज अपने कब्र अनवर से लेकर लोगों को माला माल करते चले जा रहे हैं। आखिर उसके अंदर कौन सी कशिश है? हम भी इंसान हैं, वो भी इंसान है, लेकिन आज उनकी बारगाह में लोग चले जा रहे हैं, लोग अपने दामन को फैलाते जा रहे हैं। तो कहना पड़ेगा, जो अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दिया करता है, अल्लाह ताला पूरी दुनिया को उसके हवाले कर दिया करता है। अल्लाह ताला उसके कदमों पे झुका दिया करता है। हज़रात, यही अल्लाह वालों की जमात है। आज हम और आप उनकी तारीफ करें तो अलग बात है, आज गैर भी अल्लाह वालों की तारीफ करते चले जाए। आगे एक बात बताऊं, अमेरिका के एक अंग्रेज मुफक्किर हिंदुस्तान के दौरे पे आता है और आने के बाद पूरे हिंदुस्तान का दौरा करता है। दौरा करने के बाद आज वो ताजमहल को भी देखता है, अजमेर मुअल्ला भी जाता है और जाने के बाद फिर अमेरिका पहुंच जाता है। अमेरिका पहुंचने के बाद तमाम मीडिया वाले पहुंच जाते हैं और जाने के बाद कहते हैं, तुमने हिंदुस्तान का दौरा किया है, तुमने हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा छाड़ डाला है, हिंदुस्तान की कुछ खासियत बयान करो, हिंदुस्तान के कुछ अजायबात बयान करो। अंग्रेज मुफक्किर कहता है, मैंने पूरे हिंदुस्तान का दौरा किया है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में 2 चीजों का मैंने महसूस किया है। मीडिया वालों ने सवाल किया, आखिर आपने 2 चीज क्या महसूस किया है? कहता है, एक तो मैंने देखा ताजमहल, जो अपनी खूबसूरती की वजह से लोगों के दिलों पे हुकूमत करता हुआ नजर आ रहा है, वो अजायबात में शामिल है। लेकिन आज से पहले मैंने तारीखों का मुताला किया है, बड़े बड़े राजा और महाराजाओं की जिंदगी का मैंने अध्ययन और मुताला किया है। लेकिन हिंदुस्तान में एक ऐसा राजा है, बड़े बड़े राजा जो गुजरे हैं, जमीन के ऊपर रहते लोगों पे हुकूमत करते थे, लेकिन हिंदुस्तान में एक ऐसा राजा है, जमीन के नीचे लेट कर लोगों पे हुकूमत कर रहा है। आप जमीन के नीचे लेट कर नहीं छोड़ेंगे। हज़रात, पता ये चला, ये हम नहीं कह रहे हैं, अंग्रेज मुफक्किर कह रहा है, कह रहा है बड़े बड़े राजाओं को देखा है, लेकिन हिंदुस्तान में ऐसा एक राजा है, दिल्ली के तख्त पे बैठने वाला कोई भी हो, लेकिन हिंदुस्तान का राजा तो हम सबका राजा है। उनकी बारगाह में सभी लोग नज़राने अकीदत पेश किया करते हैं। आज यही वजह है, कोई भी हो सरकार गरीब नवाज की बारगाह में जाकर चादर पेश कर दिया करते हैं, कहते हैं, गरीब नवाज कुर्सी पे बैठना मेरा काम है और हुकूमत चलाना आपका काम है। ये है अल्लाह वालों की शान, ये है अल्लाह के नेक बंदों की शान। आप अंदाजा लगाइए, हम और आप मान रहे हैं तो क्या बात है, आज गैर भी अल्लाह वालों का इतराफ करते चले जा रहे हैं। एक और से आजम के दीवानों, आज उनके महफिल में आप शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं। हम और आप अपने मुकद्दर पे नाज करें। सरकारे गौसे पाक फरमाते हैं, जिसको मैं चाहता हूँ वही मेरी महफिल में आया करता है, जिसको मैं नहीं चाहता वो मेरी महफिल में नहीं आता है। मुहक्किक अल इतलाक हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि उनसे सवाल किया गया, सरकार मुहद्दिस अब्दुल हक देहलवी फरमाते हैं, अगर किसी सरकारे गौसे पाक के दीवाने अगर इशा के बाद उनका जिक्र करते हैं तो सरकारे गौसे पाक फरमाते हैं उनका जिक्र मगरिब के बाद मेरी बारगाह में हो जाया करता है। आप कितने खुशनसीब हैं कि आपका चर्चा और जिक्र सरकारे गौसे पाक की बारगाह में हो चुका है। आज मैंने सुना है यहाँ के नौजवानों ने सरकारे गौसे पाक के महफिल का एहतमाम किया है। मैं तो दुआ करता हूँ आज ये नौजवान यहाँ रहकर यहाँ सरकारे गौसे पाक की 11वीं मना रहे हैं। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला इतना दौलत दे कि सरकारे गौसे पाक के आस्थाने
ठिकाने पे पहुंच के 11वीं करना शुरू करते हैं और वहां पे पहुंच कर सरकारे गौसे पाक के 11वीं मनाना शुरू करते हैं। आज यही वजह है सरकारे गौसे पाक के दीवाने हैं। आज पूरी दुनिया सुन्नियत में सरकारे कर गौसे पाक की बारगाह में अपने गुलामी का नजराना पेश कर रहे हैं, अपने गुलामी का सिराज अकीदत पेश कर रहे हैं। कोई घर में देख फातिया करा रहा है, कोई नजर नियाज पेश कर रहा है, कोई महफिल मिलाद के एहतमाम कर रहा है। जिसको अल्लाह ने दौलत से नवाजा है आज सरकारे गौसे पाक के दरबार में पहुंच चुका है और जाने के बाद वहां पे 11वीं कर रहा है। ए नौजवानों अपने मुकद्दर पे नाज करो, आज यहाँ कर रहे हो, आने वाले वक्त में सरकारे गौसे पाक ने तवज्जो फरमा दिया, उनके दरबार में रहकर उनका नियाज करोगे, वहां पे 11वीं मनाते चले जाओगे। रात ये सरकारे गौसे पाक कौन है आपको बता दूं, आपने इसी मेंबर से आपने इशारा फरमाया था कदमी हाज़िला रकबते कुल्ले वलील्लाह, यानी मेरा ये कदम तमाम वलियों के गर्दन पे हुआ करता है। रात ये सरकारे गौसे पाक फरमा रहे हैं, आप वहां पे फरमा रहे हैं जैसे ही आपने मेंबर से फरमाया है। आप उस वक्त जितनी मजलिस में जितने लोग मौजूद थे तमाम लोगों ने अपने सरों को नीचे कर लिया था। इसी हिंदुस्तान के राजा सरकारे करीम नवाज खुरासान में थे। आप वहां पे जब इस बात को सुनते हैं, आज तो मोबाइल का जमाना है, आज इंटरनेट का जमाना है, आज पूरी दुनिया को आप अपने मोबाइल में देख सकते हैं, आज पूरी दुनिया को आप अपने मोबाइल से नजारा कर सकते हैं। लेकिन ये गरीब नवाज सरकारे गौसे पाक फकरात में इरशाद फरमा रहे हैं, आप खुरासान की पहाड़ियों में मुजाहिदा फरमा रहे हैं, आप खुरासान की पहाड़ियों में इबादत और रियासत में मशगूल हैं। गौसे पाक फकरात में इरशाद फरमाते हैं, गरीब नवाज खुरासान की पहाड़ियों में सुन लेते हैं। आखिर उस जमाने में कौन सा मोबाइल था, उस जमाने में कौन सा कनेक्शन था, उस जमाने में कौन सा इंटरनेट का जमाना था। तो मुकद्दर पे अपने नाज करो, जो अपना 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 ये नेटवर्क मदीने वाले मुस्तफा से जोड़ लिया करता है, तमाम कनेक्शन उसके कदमों में पहुंचाया करता है। रात ये है सरकारे गौसे पाक, आपने मेंबर से ऐलान फरमाया मेरा कदम तमाम वलियों के गर्दन पे है। सरकारे गरीब नवाज है, आप खुरासान की पहाड़ियों में आप वहां पे अपने सर को झुका देते हैं और कहते हैं मेरे सरकारे गौसे पाक, आपका कदम सिर्फ मेरे कंधे पे नहीं लेकिन आपका कदम तो मेरे सर और आंखों पर है। आप शहजादे आला हजरत सरकार मुफ्ती आज़म हिंद फरमाते हैं, ए मेरे सरकारे गौर, ये दिल ये जिगर ये आंखें ये सर है, ये दिल ये जिगर ये आंखें ये सर है। जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम। रात ये सरकारे गौसे पाक है, आप 470 हिजरी में आप पैदा हो रहे हैं, आप शहरे जीरान में पैदा हो रहे हैं। शहरे जीरान कहाँ है? ये मुल्के ईरान में है। सरकारे गरीब नवाज आप संजर में पैदा हो रहे हैं, संजर कहाँ है? मुल्के ईरान में है। हजरत मदारुल आलमीन के नूर मुझे हजरत बायजीद बुस्तामी बुस्तान शहर में पैदा हुए। बुस्तान शहर कहाँ है? मुल्के ईरान में है। उलमा मौजूद हैं। शेख सादी शिराजी आप कहाँ पैदा हुए? आप शहरे शिराज में पैदा हुए। शहरे शिराज कहाँ है? ये मुल्के ईरान में है। हजरत शेख अहमद जाम जिनका जिक्र है जिंदा थे, आप कहाँ पैदा हुए? आप शहरे जाम में पैदा हुए। शहरे जाम कहाँ है? वो मुल्के ईरान में है। अरे कलंदरों नाज करो, हमारे औलाद में गौसे आजम जहाँ पैदा हुए वो जीरान शहर भी मुल्के ईरान में हुआ करता है। अर्थात यह है सरकारे गौसे पाक, यह औलियाए कामिलीन की जमात है जो मुल्के ईरान में पैदा हो रहे हैं और जहाँ जहाँ रब का हुक्म हो रहा है दीन की तरबियत और इरशाद के लिए निकलते चले जा रहे हैं। मखदूम समनानी आप समनान में पैदा हुए। समनान कहाँ है? मुल्के ईरान में। आपने सल्तनत को तर्क कर दिया और कचौचे मुकद्दसा को अपना मस्कन बना लिया। आज वो मखदूम समनानी आज अपना फैज़ो बता कचौचे मुकद्दसा से लुटा रहे हैं और लोग मुस्तफीद होते चले जा रहे हैं। रात में सरकारे गौसे पाक आप मादरसात बनी हैं, आप पैदाइशी बनी हैं। आप बहुत ही मशहूर वाक़या है कि आप अपनी माँ के शिकम में थे तो आपने 18 पारा हिफ्ज़ कर लिया था। आप रस्म बिस्मिल्लाह खानी के लिए जब मुअल्लिम के पास आपको ले जाया जाता है
ہے جب معلم نے کہا بیٹے بسم اللہ اور اعوذ باللہ شروع کراتے ہیں تو اعوذ اور تسمیہ سے آپ کی شروعات ہوتی ہے. سرکار غوث پاک ہیں, آپ نے سورہ فاتحہ پڑھ ڈالی, آپ نے سورہ بقرہ پڑھ ڈالی, پہلا اور دوسرا پارہ پڑھ ڈالا, تیسرا اور چوتھا پارہ پڑھ ڈالا, آخر میں جا کر 18 پارہ پہ روکتے ہیں. معلم کہتے ہیں بیٹے ارے تم پڑھنے کے لیے آیا ہے کہ پڑھانے کے لیے آیا ہے؟ آخر تو نے تیرے جیسے بچوں کو تو بولنے کی تمیز نہیں ہوتی ہے, انہیں علی با تازہ نہیں آیا کرتا ہے, لیکن آج تو 18 پارہ مجھے سنا دیا ہے. اے بیٹے بتا آخر تم نے یاد کیسے کر لیا ہے؟ حضرات ایک نقطہ یہاں ملاحظہ فرمائیں, آج سائنس کہہ رہا ہے جب عورتیں امید سے ہو جائیں وہ غلط کام نہ کیا کریں, کیونکہ مائیں جو حرکتیں کیا کرتی ہیں پیٹ میں پلنے والے بچوں کو اس کا اثر پڑا کرتا ہے. پہلے کی مائیں فجر کی نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی تو بیٹا کو زیادت پیدا ہوا کرتا تھا, بیٹا سرکار غریب نماز پیدا ہوا کرتا تھا, حضرت نظام الدین اولیاء پیدا ہوا کرتے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت سرکار غوث پاک ہے, اپنی ماں کے شکم مبارک میں ہے, 18 پارہ حفظ کر لیا ہے. اعلیٰ تعلیم کے لیے جب 18 سال کی آپ کی عمر شریف ہو جاتی ہے, اور جانتے ہیں کتنی سال میں آپ پیدا ہو رہے ہیں, تاریخوں میں ملتا ہے, علماء موجود ہیں, جب آپ کی ماں کا نام حضرت ام الخیر فاطمہ نام ہے, آپ کی عمر شریف 60 سال کی ہو جاتی ہے, اس وقت سرکار غوث پاک پیدا ہو رہے ہیں. اب آپ اندازہ لگائیے اتنی عمر میں سرکار غوث پاک پیدا ہو رہے ہیں, وہ بھی اکلوتے سرکار غوث پاک ایسے وقت میں پیدا ہو رہے ہیں. اب بتائیے ماں اپنے بیٹے سے کتنی محبت کرتی ہوگی. آپ کے ماں ام الخیر فاطمہ نام ہے, آپ کے والد کا نام سید ابو صالح موسیٰ چنگی گوشت ہے, اور آپ کے نانا جان کا نام سید عبداللہ سوئی نام ہے, آپ کی بہن کا نام عائشہ جیلانی نام ہے, اور آپ کے پیر و مرشد کا نام ابو سعید مخزومی نام ہے. حضرات یہ ہے تمام سرکار غوث پاک. آپ سرکار غوث پاک ہیں. 18 سال کی عمر میں جب آپ بغداد شہر جانے کے لیے جامعہ نظامیہ میں اعلیٰ تعلیم کے لیے جانے کے لیے جا رہے ہیں, اپنی والدہ سے اجازت لیتے ہیں, کہتے ہیں امی جان مجھے اجازت دیجیے. آپ فرماتی ہیں بیٹے میں نے اللہ نے تجھے دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا ہے کہ تو میری خدمت کر, ارے اللہ نے تجھے دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ دین محمدی کی تو خدمت کیا کر, شریعت محمدی کی تو پاسبانی کر. آپ اپنی نمازوں سے اجازت دے دیتی ہیں اور 40 درہم دیتی ہیں, اور دینے کے بعد کہتی ہیں بیٹا یہ لے جاؤ اپنے اخراجات اپنی ضرورتیں پوری کرنا, اور لے بیٹا لیکن ایک میں وصیت کرتی ہوں جہاں بھی تم رہنا سچ کا دامن ساتھ سے نہ چھوڑنا, ہمیشہ سچ بولتے رہنا, چاہے مصیبت آ جائے سچ بولنا, چاہے کسی مصیبت میں پڑ جانا تم ہمیشہ سچ بولنا. آج یہی وجہ ہے سرکار غوث پاک جب قافلے کے ساتھ جب ہم رام شہر میں پہنچتے ہیں, تمام قافلے جب وہاں پہنچتا ہے وہاں کے ڈاکو نے آپ کو گھیر لیتا ہے. واقعہ بہت مشہور ہے لیکن میں یہ واقعہ بتانا مقصد نہیں ہے, لیکن اس کا پس منظر ملاحظہ فرمائے. سرکار غوث پاک کی ماں ہے اپنے بچے سے کہتی ہے بیٹا سچ بولنا, جہاں بھی رہنا سچ بولنا. آج ہمارے اور آپ کا معاملہ یہ ہے, اگر کوئی تقاضا کرنے والا گھر پہ آ جائے, باپ گھر میں موجود ہے اور بیٹے سے کہتا ہے کہ جا دیکھ تیرے ابا گھر پہ موجود ہے کہ نہیں, تو باپ اپنے بیٹے سے خود کہتا ہے جا کے کہتے کہ آج ابا موجود نہیں ہے, جا کے کہتے آج اس کا گھر میں ابا موجود نہیں ہے. ماں سے سوال کرتا ہے, ماں کہتی ہے جا کے بول دو آج گھر میں کوئی موجود نہیں ہے. آپ جب بچپنے سے جھوٹ بولنے کی عادت ڈالی جاتی ہے تو وہی بچہ جب بڑا ہو کر جب اپنے ماں باپ کو جھوٹ بول کر جب اپنے چاروں میں پھنسانے لگتا ہے, جب وہ جھوٹ بول کر ماں باپ کو تباہ و برباد کرنے لگتا ہے, وہی ماں باپ پریشان ہوتے ہیں. حضرت امام صاحب قبلہ کے پاس آتے ہیں, حضور میرا بیٹا میرے قبضے سے باہر ہو چکا ہے, بہت زیادہ مجھ سے جھوٹ بول رہا ہے, میرے بس میں نہیں ہے. حضرت آپ کچھ انتظام کر دیجئے, آپ کوئی تعویذ لکھ دیجئے, کوئی پانی پڑھ کر دے دیجئے تاکہ میرا بیٹا میری بات ماننے لگے. کاش کہ میرے مائیں اور میرا اور باپ اپنے بچے کو شروع سے کر دیتے تھے. ضرور شریف پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات کاش کہ یہ مائیں اور باپ اپنے بچوں کو شروع سے ہی اگر یہ تربیت دینا شروع کر دیں. ان کی والدہ فرماتی ہے بیٹا ارے تم جا تو رہے ہو لیکن کسی حال میں تم جھوٹ نہ بولنا, ہر حال میں سچا
सच्चाई का दामन थामने रखना। ये सच्चाई की बरकत देखिए, तमाम काफले वालों को लूट लिया जाता है। आता है एक किस्म का और रहसन आता है, आने के बाद कहते बच्चे ये बजा तेरे पास भी कुछ मौजूद है। सरकारे गौसे पाक पकड़ने का आलम है। कहते हैं हाँ मेरे पास मौजूद है। कहता है क्या है? कहता है 40 दिरहम मेरे पास मौजूद है। वो कहता है ये छोटा बच्चा है, इसे मालूम नहीं है। वो बात सोच के टाल के चला जाता है। दूसरा आता है, वो भी वही सुन के चला जाता है। तीसरा आता है, वो भी वही सुन के चला जाता है। अब डाकुओं का सरदार आता है। आने के बाद कहते हैं बेटा मैंने सुना है कि तेरे पास 40 दिरहम मौजूद है, क्या तू सही बोल रहा है? सरकारे गौसे पाक कहते हैं हाँ हाँ, मेरी माँ ने चलते वक्त मेरी गुदरी में 40 दिरहम सिलकर दिया था और कहा था ये मेरे लाल, ये मेरे आंखों के नूर, ये मेरे दिल के सरोवर, अरे तुम जहाँ भी रहना हमेशा सच बोलते हुए नजर आना। अगर तुम सच बोलोगे अल्लाह तुम्हारी मदद फरमाएगा, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत फरमाएगा। सरकारे गौसे पाक जब कहते हैं वो डाकुओं का सरदार अचंभे में पड़ जाता है। आखिर इसको तो चाहिए अपने मालो दौलत को छुपा के रखना, आखिर क्या वजह है? जब आपकी गुदरी को खोला जाता है उसमें से 40 दिरहम निकलते हैं। निकलने के बाद वो देख कर दंग रह जाता है। कहता है बेटे बता आखिर कौन ऐसी मजबूरी आ गई है, तू अपने माल को छुपाना चाहिए तो तू अपना हमारे सामने जाहिर कर दिया है। कहता है देख मैं आते वक्त मेरी माँ ने मुझसे एक मुआहिदा किया था, मेरी माँ ने मुझसे एक वादा लिया था, मेरी माँ ने मुझे नसीहत किया था ए बेटे जहाँ भी तुम रहना कभी झूठ ना बोलना, हमेशा सच बोलना। मैं चाहता हूँ मेरा माल और दौलत लुट जाए लेकिन मैं अपने माँ की अमानत को हरगिज़ न लूटने दूंगा, मैं अपने माँ के वादे को हरगिज़ नहीं तोड़ूंगा। ये तमाम मेरा दौलत लुट जाए। जब इतना सुनना था डाकुओं के सरदार पे बिजली की तरह बात असर करती है और फौरन कहता है ये मेरे बड़े बच्चे सुन सुन, अरे तू एक ऐसा बेटा है कि अपने माँ के वादे को निभा रहा है। आज हम ऐसे नाहंजार हैं कि हम रब के वादा के खिलाफी करते चले जा रहे हैं, उसकी नाफरमानी करते चले जा रहे हैं। ये बच्चे तेरे हाथ पे तोबा करते हैं, आज के बाद कभी आप चोरी नहीं करेंगे। रात उस बच्चे के अंदर कौन सी बात थी? ये माँ की वसीयत थी। माँ ने कहा था बेटा सच बोलना। ये सच की बरकत थी कि तमाम डाकू तौबा करने पे मजबूर हो गए। रात यह सरकारे गौसे पाक की शान, आप जिस शहर में जाते हैं आप हमेशा इस्लाम का बोलबाला करते चले जा रहे हैं। सरकारे गौसे पाक हैं, आप सरकारे गौसे पाक की बारगाह में आप बचपने का आप जब बड़े हो जाते हैं, बड़े होने के बाद अपनी अम्मी जान से कहते हैं अम्मी जान मेरे बचपने का कोई वाकया तो बताइए। अम्मी जान कहती है तू बचपने का वाकया सुनना चाहता है? कहते हैं हाँ अम्मी जान जरा मुझे मेरे बचपने का कोई वाकया सुनाइए। आप फरमाती हैं कि मेरे बेटे सुन, जब तू मेरे शिकम में था तो मैं घर में मौजूद थी, अचानक मेरे घर के सामने एक साइल आ जाता है और आने के बाद सवाल करता है कोई जो अल्लाह का बंदा जो अल्लाह के नाम पे मुझे कुछ दे दे, है कोई जो मेरी जरूरत को पूरी कर दे। उस वक्त बेटे घर में कोई मौजूद नहीं था, मैं तन्हा घर में अकेले मौजूद थी। मैं दरवाजे पे आकर मैंने जवाब दिया इस वक्त हमारे घर में कोई मौजूद नहीं है, आदमी नहीं है, आप कल आ जाना, आपकी जरूरत पूरी कर दी जाएगी, आपके सवाल करें वो आपको पूरा कर दिया जाएगा। जब इतना सुनना था साहिल की नीयत खराब हो जाती है। इस घर में एक औरत मौजूद है, चलो इसे डांट डपट कर किनारे कर दिया जाएगा, इसके माल और दौलत को लेकर मैं फरार हो जाऊंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। वो साहिल की नीयत बदलती है, घर के अंदर दाखिल हो जाती है। हजरत से पाक की वालदा जब देखती है परेशान हो जाती है, कहती है बेटे मैंने अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदद मांगी और मैंने उन पे दरूद पढ़ना शुरू कर दिया और मैंने कहा ए मदीने के ताजदार, ए मदीने के गमखार, आप हमारी मदद फरमाइए, आप हमारी रहनुमाई फरमाइए। अचानक उनकी अम्मा फरमाती है बेटे अब्दुल कादिर मैं अचानक क्या देखे, खजूर के बाग से एक शेर दौड़ता हुआ आता है और आने के बाद उस सारे को जो टुकड़े कर देता है और टुकड़ा करने के बाद फौरन अपने पीठ पे अपने पुष्ट पे लादता है और लाद कर उसे फिर जंगल में लेके चला जाता है। बेटे अब्दुल कादिर जब मैं उस मंजर को याद करती हूँ तो मैं मुझे घबरा जाती हूँ, मेरा दिल आप पे में नहीं रहता, मैं सहम जाती हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अल्लाह ने मेरी कितनी मदद फरमा दी। अब बेटे अब्दुल कादिर वो शेर जंगल में चला गया और उसको लेकर चला गया। आप जवाब मुलाहिजा फरमाइए ईमान ताजा हो जाएगा। हजरत सरकारे गौसे पाक फरमाते हैं अम्मी जान आप उस शेर को पहचानती हैं?
अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं, अम्मी जान आप उस शेर को पहचानती हैं? माँ कहती है, बेटे अब्दुल कादिर मैं तो शेर को नहीं पहचानती। सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं, अम्मी जान वो शेर और नहीं था, हमारा बेटा अब्दुल कादिर आया था। आप ये देखिए माँ के शिकम में मौजूद है। आप माँ के ऊपर किसी ने नजर बद डाला है और घर में चुराने के इरादे से आया है। सरकारे गौसे पाक वहाँ मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। एक गौसे आजम के दीवानों, आज उनकी महफिल में आप जिन्नत की सआदत हासिल कर रहे हैं। आप जिस नियत से आए हो अल्लाह ताला सरकारे गौसे पाक के सदके में आपकी नियतों को कबूल फरमा लेगा, आपकी जायज मकासद को पूरा फरमा लेगा। बहुत सारी करामतें मशहूर हैं, लेकिन करामतें तो ये है सरकारे गौसे पाक बहुत बड़े मुहद्दिस थे, सरकारे गौसे पाक बहुत बड़े आप मुफस्सिर थे। आप फिक्र में कोई जवाब नहीं था। आप जब बगदाद शरीफ पहुंचते हैं, जब आपका इल्म का डंका बजने लगता है, अपने वक्त के बड़े बड़े मुफक्किर, अपने वक्त के बड़े बड़े मुफस्सिर आपकी बारगाह में आके सर में अदब करते हैं। और आपके तकवे का आलम तो ये है, आपकी एक रात में पूरी कुरान खत्म कर दिया करते थे और एक रात में पूरे कुरान खत्म कर दिया करते थे। अब आप अंदाजा लगाइए, बहुत ही मशहूर वाकया आपके तकवे का आलम यह है कि 40 साल ऐशा की वजह से फजर की नमाज अदा करते रहे। एक गौसे आजम के दीवानों, आप इतने बड़े मुत्तकी और परहेजगार हैं, आपकी करामतें भी उसी अंदाज है। आप जितने तकवा शियार हैं, आप जितने मुत्तकी हैं, आपके करामत आप तो पैदा होते ही आपके करामत जाहिर होने लगा। सरकारे गौसे पाक की बारगाह में एक चोर आता है और आने के बाद कहता है सरकारे गौसे पाक आपकी खानकाह में पहुंच जाता है, कहता है हुजूर मैं आपसे मुरीद होने के लिए आया हूँ। सरकारे गौसे पाक फरमाते हैं जा वजू कर, मैं तुझे अभी मुरीद कर देता हूँ। आने वाला चोर कहता है हुजूर मुरीद होने से पहले मेरी एक शर्त है, 2 शर्त है। सरकारे गौसे पाक फरमाते हैं बता तेरी क्या 2 शर्त है? कहता है 2 शर्त में ये है कि मैं चोर हूँ, मुरीद होने के बाद चोरी बंद नहीं करूंगा। अल्लाह, मैं चोर हूँ, मुरीद होने के बाद भी चोरी बंद नहीं करूंगा। कहते हैं ला हौल वला कुव्वत, तू शरीयत के खिलाफ बात कर रहा है, कैसी तू बातें कर रहा है? अच्छे बता तेरी दूसरी शर्त क्या है? कहता है मैं नमाज नहीं पढ़ता हूँ, मुरीद होने के बाद भी नमाज नहीं पढ़ूंगा। अल्लाह अकबर। सरकारे गौसे पाक जब कहते इतना सुनते हैं, कहते तू भाग जा, शरीयत के खिलाफ बात करता है, शरीयत के खिलाफ काम करता है और अब्दुल कादिर का गुलाम बनना चाहता है, यहाँ से चला जा, मैं तुझे मुरीद नहीं कर सकता, यहाँ से फौरन तू रास्ता ले। लेकिन वो चोर आया था, दामन को पकड़ लिया, कहा हुजूर आपने बड़े बड़े चोरों को आपने अपने दामन गौसियत में जगह अता फरमाई है, हुजूर इस गुनहगार को भी अपने दामन में जगह दे दे। हुजूर ये दरबार गौसे आजम का है और वास्ता फातिमा उम्मुल खैर का है, आप अपने दामन गौसियत में मुझे भी जगह दे दे। सरकारे गौसे पाक कहते हैं इतना बड़ा तू वास्ता दे रहा है, थोड़ी देर वक्फा फरमाते हैं, उसके बाद कहते हैं ठीक है मेरी भी एक शर्त है। कहता है हुजूर फौरन अपनी शर्त बताइए। मैं आपकी एक शर्त क्या मेरी 2 शर्त मान लीजिए, मैं आपकी 1000 शर्त मान लूंगा। सरकारे गौसे पाक फरमाते हैं नहीं तू मेरा सिर्फ एक शर्त मान ले। कहता हुजूर बताइए शर्त क्या है? कहते हैं मेरी शर्त यह है कि जैसे ही अजान का वक्त हो जाए वहीं पे अजान पढ़ना शुरू कर देना। बोलिए सुभान अल्लाह। जैसे ही अजान का वक्त हो जाए वहीं पे अजान पढ़ना शुरू कर देना। कहता इसमें कौन सी बात है, मैं तो अजान तो पढ़ने के लिए तैयार हूँ। फौरन कहता हुजूर आपका मुआहिदा आप मुझे मुरीद कीजिए। सरकारे गौसे पाक उसे मुरीद कर देते हैं और मुरीद करने के बाद वो अपने घर चला जाता है। 3 दिन तक बिस्तर पे पड़ा है, जैसे ही अजान का वक्त होता है बिस्तर से उठता है, घर ही में अजान पढ़ना शुरू कर देता है। अल्लाह अकबर। अजान पढ़ता है और आके सो जाता है। 3 दिन जब गुजर जाता है, बीवी कहती है अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है,
तू आए दिन अजान पे अजान पढ़ता चला जा रहा है, ले दे के अजान पे पड़ा हुआ है। अगर तुझे इतनी अजान देने की ख्वाहिश है, मस्जिद के मोहल्ले की मस्जिद में चला जा और वहाँ पे अजान पढ़। अरे तू अजान पढ़ रहा है, नमाज में पढ़ेगा, जरा नमाज में पढ़ के देखा। कहता है कि नहीं नहीं, अब्दुल कादिर जिलानी से मेरा मुआहदा हो चुका है, उन्होंने कहा है कि जब अजान का वक्त हो जाए तो मुझे अजान वक्त दे दिया करना। कहते ये बता, पहले मैं तो चोरी किया करता था, राशनी करता था और सामान लूट के लाता था, घर का पूरा काम चलता था। आज घर में राशन खत्म हो गया है, आज हम आगे पे जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, बता कब चोरी करने के लिए जाएगा। कहता यही तो मैं सोच रहा हूँ कि किस वक्त चोरी करने के लिए जाऊं, ताकि चोरी के दौरान में अजान का वक्त ना आने पाए, चोरी के दौरान अजान का वक्त ना आने पाए। कहता है मैंने बहुत सोचो फिक्र के बाद मैंने ये वक्त निकाला है कि रात में 11 बजे से लेकर 3:30 बजे का वक्त होगा, इसी दौरान जाते हैं और चोरी करके लेकर चले आएंगे और अजान का वक्त इसमें नहीं होगा। चौथे दिन 5वें दिन निकल जाता है, बगदाद शरीफ के सबसे अमीर घराने में दाखिल होता है, रस्सी के जरिए फलांग लगाकर अमीर के घर में दाखिल होता है और उस घर में दाखिल होता है, चिराग जलाता है और दरवाजे को खोलता है, जिसमें तमाम सोने चांदी के सिक्के मौजूद थे, दिरहमो दनानीर मौजूद थे। फौरन बोरी निकालता है और इतने उसमें मालो दौलत मौजूद थे कि तमाम मालो दौलत को बोरी में भरना शुरू कर देता है और इतना भरता है, भरते भरते जैसे बोरी का मुंह बंद देता है, देखता है कि फजर का वक्त स्टार्ट हो चुका है। अल्लाह अकबर, फजर का वक्त शुरू हो चुका। अमीर घराना है, दलान में जाकर बोरी रख देता है और देखता है, याद आता है कि अब्दुल कादिर जिलानी से मैंने वादा किया है कि जहां भी अजान का वक्त हो जाए वहीं पे तू अजान पढ़ देना। अब तो वक्त हो चुका है, घर में जाता है, दलान के अंदर अपनी बोरी को रखता है और वहीं पे अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद कर देता है। गया था चोरी करने के लिए, अजान पढ़ना शुरू करता है, जैसे ही अल्लाह अकबर की सदाएं लगाना शुरू करता है, घर में जितने लोग सोए हुए थे बेदार हो जाते हैं। जब देखता है कि तमाम अपने नमाज़ान से फारिग होता है, तो देखता है कि तमाम घर वाले बेदार हो चुके हैं और सब वजू कर रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए। अल्लाह अकबर कबीरा। अब वो पशु पेश में पड़ता है, कैसे सब लोग बेदार हो चुके हैं, कैसे इस घर से मैं निकल जाऊं, कैसे ऐसे निकलूं। सोचता है जब तक घर वाले वजू कर रहे हैं, लाओ मैं 2 रकात नमाज पढ़ूं, और जैसे ही ये लोग वजू अब 2 रकात सुन्नत की नियत मानेंगे, मैं घर से निकल जाऊंगा। जैसे ही 2 रकात की नियत उस दलान में पढ़ने लगता है, जैसे ही नमाज से फारिग होता है, तो क्या देखता है, नमाजियों की 2 सफे पीछे मौजूद है। अल्लाह अकबर। पूरे घर वाले वजू से फारिग होकर और सुन्नत पढ़ के उसके पीछे आके बैठ गए हैं। देखने के बाद अब परेशान हो जाता है, अब क्या करूं। वही 16-17 हजार रुपए गज। 16-17 लाख। अरे 50 गज। हाँ तो 50 है, 25 थोड़ी है। 16 लाख है, 15 मान लो है, 15 लाख में फिर 7.5 का पड़ेगा फिर एक बंदी को है। तो सही है ना वो। 25 गज। और क्या चाहिए। तो मत्था भी हिसाब से होना चाहिए कि 2 लोग अलग हो जाए। 50 का तो है, 50 25 वाला क्या झमेला रेट है, क्या रेट है। वही 16-17 हजार रुपए गज। 16-17 लाख। अरे 50 गज। हाँ तो 50 है, 25 थोड़ी है। 16 लाख है, 15 मान लो है, 15 लाख में फिर 7.5 का पड़ेगा फिर एक बंदी को है। तो सही है ना वो। 25 गज। और क्या चाहिए। तो मत्था भी हिसाब से होना चाहिए कि 2 लोग अलग हो जाए। 50 का तो है, 25 वाला क्या झमेला रेट है, क्या रेट है। वही 16-17 हजार रुपए गज। 16-17 लाख। अरे 50 गज। हाँ तो 50 है, 25 थोड़ी है। 16 लाख है, 15 मान लो है, 15 लाख में फिर 7.5 का पड़ेगा फिर एक बंदी को है। तो सही है ना वो। 25 गज। और क्या चाहिए। तो मत्था भी हिसाब से होना चाहिए कि 2 लोग अलग हो जाए। 50 का तो है, 25 वाला क्या झमेला रेट है, क्या रेट है। वही 16-17 हजार रुपए गज। 16-17 लाख। अरे 50 गज। हाँ तो 50 है, 25 थोड़ी है। 16 लाख है, 15 मान लो है, 15 लाख में फिर 7.5 का पड़ेगा फिर एक बंदी को है। तो सही है ना वो। 25 गज। और क्या चाहिए। तो मत्था भी हिसाब से होना चाहिए कि 2 लोग अलग हो जाए। 50 का तो है, 50 25 वाला क्या झमेला रेट है, क्या रेट है।
वही 16-17। 1000 रुपए गज। 16-17 लाख। अरे 50 गज। हाँ तो 50 है, 25 थोड़ी है यार। 16 लाख है। 15 मान लो है, 15 लाख में फिर 7.5 का पड़ेगा फिर एक बंदे को है। तो सही है ना वो। 25 गज। और क्या चाहिए? तो मत्था भी हिसाब से होना चाहिए कि दो लोग अलग हो जाए। 50 का तो है। 50 का 25 वाला क्या झमेला। रेट है? क्या रेट है? वही 16-17। 1000 रुपए गज। 16-17 लाख। अरे 50 गज। हाँ तो 50 है, 25 थोड़ी है यार। 16 लाख है। 15 मान लो है, 15 लाख में फिर 7.5 का पड़ेगा फिर एक बंदे को है। तो सही है ना वो। 25 गज। और क्या चाहिए? तो मत्था भी हिसाब से होना चाहिए कि दो लोग अलग हो जाए। 50 का तो है। 50 का 25 वाला क्या झमेला। रेट है? क्या रेट है? वही 16-17। 1000 रुपए गज। 16-17 लाख। अरे 50 गज। हाँ तो 50 है, 25 थोड़ी है यार। 16 लाख है। 15 मान लो है, 15 लाख में फिर 7.5 का पड़ेगा फिर एक बंदे को है। तो सही है ना वो। 25 गज। और क्या चाहिए? तो मत्था भी हिसाब से होना चाहिए कि दो लोग अलग हो जाए। 50 का तो है। 50 का 25 वाला क्या झमेला। रेट है? क्या रेट है? वही 16-17। 1000 रुपए गज। 16-17 लाख। अरे 50 गज। हाँ तो 50 है, 25 थोड़ी है यार। 16 लाख है। 15 मान लो है, 15 लाख में फिर 7.5 का पड़ेगा फिर एक बंदे को है। तो सही है ना वो। 25 गज। और क्या चाहिए? तो मत्था भी हिसाब से होना चाहिए कि दो लोग अलग हो जाए। 50 का तो है। 50 का 25 वाला क्या झमेला। रेट है? क्या रेट है? वही 16-17। 1000 रुपए गज। 16-17 लाख। अरे 50 गज। हाँ तो 50 है, 25 थोड़ी है यार। 16 लाख है। 15 मान लो है, 15 लाख में फिर 7.5 का पड़ेगा फिर एक बंदे को है। तो सही है ना वो। 25 गज। और क्या चाहिए? तो मत्था भी हिसाब से होना चाहिए कि दो लोग अलग हो जाए। 50 का तो है। 50 25 वाला क्या झमेला। रेट है? क्या रेट है? वही 16-17। 1000 रुपए गज। 16-17 लाख। अरे 50 गज। हाँ तो 50 है, 25 थोड़ी है यार। 16 लाख है। 15 मान लो है, 15 लाख में फिर 7.5 का पड़ेगा फिर एक बंदे को है। तो सही है ना वो। 25 गज। और क्या चाहिए? तो मत्था भी हिसाब से होना चाहिए कि दो लोग अलग हो जाए। 50 का तो है। 50 25 वाला क्या झमेला। रेट है? क्या रेट है? वही 16-17। 1000 रुपए गज। 16-17 लाख। अरे 50 गज। हाँ तो 50 है, 25 थोड़ी है यार। 16 लाख है। 15 मान लो है, 15 लाख में फिर 7.5 का पड़ेगा फिर एक बंदे को है। तो सही है ना वो। 25 गज। और क्या चाहिए? तो मत्था भी हिसाब से होना चाहिए कि दो लोग अलग हो जाए। 50 का तो है। 50 25 वाला क्या झमेला। रेट है? क्या रेट है? वही 16-17। 1000 रुपए गज। 16-17 लाख। अरे 50 गज। हाँ तो 50 है, 25 थोड़ी है यार। 16 लाख है। 15 मान लो है, 15 लाख में फिर 7.5 का पड़ेगा फिर एक बंदे को है। तो सही है ना वो। 25 गज। और क्या चाहिए? तो मत्था भी हिसाब से होना चाहिए कि दो लोग अलग हो जाए। 50 का तो है। 50 25 वाला क्या झमेला। रेट है? क्या रेट है? वही 16-17। 1000 रुपए गज। 16-17 लाख। अरे 50 गज। हाँ तो 50 है, 25 थोड़ी है यार। 16 लाख है। 15 मान लो है, 15 लाख में फिर 7.5। 50 का तो है। 50 25 वाला क्या झमेला। रेट है? क्या रेट है? वही 16-17। 1000 रुपए गज। 16-17 लाख। अरे 50 गज। हाँ तो 50 है, 25 थोड़ी है यार। 16 लाख है। 15 मान लो है, 15 लाख में फिर 7.5 का पड़ेगा फिर एक बंदे को है। तो सही है ना वो। 25 गज। और क्या चाहिए? तो मत्था भी हिसाब से होना चाहिए कि दो लोग अलग हो जाए। 50 का तो है। 50 25 वाला क्या झमेला। रेट है? क्या रेट है? वही 16-17। 1000 रुपए गज। 16-17 लाख। अरे 50 गज। हाँ तो 50 है, 25 थोड़ी है यार। 16 लाख है। 15 मान लो है, 15 लाख में फिर 7.5 का पड़ेगा फिर एक बंदे को है। तो सही है ना वो। 25 गज। और क्या चाहिए? तो मत्था भी हिसाब से होना चाहिए कि दो लोग अलग हो जाए। 50 का तो है। 50 25 वाला क्या झमेला। रेट है? क्या रेट है? वही 16-17। 1000 रुपए गज। 16-17 लाख। अरे 50 गज।
हाँ तो 50 है, 25 थोड़ी है। तो 16 लाख है, 15 मान लो है, 15 लाख में फिर 7.5 का पड़ेगा फिर एक बंदी को है। तो सही है ना वो। 25 गज। और क्या चाहिए? तो मत्था भी हिसाब से होना चाहिए कि दो लोग अलग हो जाए। 50 का तो है। 50 25 वाला क्या झमेला रेट है? क्या रेट है? वही 16-17। 1000 रुपये गज। 16-17 लाख। अरे 50 गज। हाँ तो 50 है, 25 थोड़ी है। तो 16 लाख है, 15 मान लो है, 15 लाख में फिर 7.5 का पड़ेगा फिर एक बंदी को है। तो सही है ना वो। 25 गज। और क्या चाहिए? तो मत्था भी हिसाब से होना चाहिए कि दो लोग अलग हो जाए। 50 का तो है। 25 वाला क्या झमेला रेट है? क्या रेट है? वही 16-17। 1000 रुपये गज। 16-17 लाख। अरे 50 गज। हाँ तो 50 है, 25 थोड़ी है। तो 16 लाख है, 15 मान लो है।